Deepak Kesarkar ji is with us on the phone line. Sir, we are now expecting that you will be leaving Guwahati soon, sir. Where are you headed? We'll be staying closer to Mumbai because we'll have to be present in the assembly. So accordingly, we have made the arrangements. Is it Goa, sir? Are you now moving to Goa? That is not yet decided, but it could be somewhere near Maharashtra. Okay, Mr. Deepak, is there any decision on whether you will be attending the floor test? Is that going to happen for sure, or are you also looking at abstaining from voting? Madam, whether we attend or we don't attend, in the worst case, the government is going to fall because they don't have the majority. Yes. Even the independents could defeat them. So they should understand it and they should submit their resignation. That is what we feel. Right, but Mr. Shinde came out to say that they will be attending the floor test tomorrow, but in the meantime, they will not be abstaining. They will be a part of the Shiv Sena as they have always been. So how does it play out, sir? Of course. Shiv Sena, we are the Shiv Sena Assembly Party. What is the parliamentary procedure? Who will you be voting for, sir? We'll be, of course, voting against Mahavikas Aghadi. Okay. We have our own group. Mr. Deepak is leading our group and he is the leader of the original Shiv Sena Assembly Party. What the political party says don't matter in Assembly Party because whatever your constitution says, you cannot change the leader of Assembly Party. That clear decisions are there. In case of Paswan decision, it is made clear that what party constitution says does not, constitution and act supersedes all party constitution. Okay, so you have more than 2/3 of the majority, so you know the numbers are on your side. But Mr. Deepak, Uddhav Thackeray is still not ready to give up. Sources suggesting that he is also likely to approach the Supreme Court against the floor test tomorrow. Let him approach, that is his right, no? But we are not going to meet him in any case. Till yesterday we were requesting him that he should finish his ties with NCP and Congress. Still, we are original Shiv Sainik. More than Shiv Sainik, he loves Pawar Sahib and his party. So this is something which everybody will not be able to, accept. So I don't think there is any hope of having further dialogues. That time is over now, and it's time for assembly test on the floor of the assembly. Right. So, Mr. Kesarkar, you won't be taking any chances. I mean, there is no immediately heading back to Mumbai or to Maharashtra anytime soon. You will be doing a brief stopover in Goa. That is what the information is now suggesting because your buses have already come to pick you up. But it is all comes down to tomorrow, sir. Kamakshi Mata's darshan first. Yes. And then we'll decide where to go. All right. You will also be leaving for the Kamakhya Mandir. Yeah, of course. Pranesh? We'll take Kamakhya Mandir. Deepak Kesarkar sir, good morning sir. I just have a couple of questions. First of all, congratulations because जो list हमारे पास आई है उसमें मिनिस्टर में आपका भी नाम है. देवेंद्र फडणवीस as the chief minister, एकनाथ शिंदे as deputy CM. मैं उसमें बिलीव नहीं करता. सर आप तो पहले दिन से बिलीव नहीं कर रहे. ठीक है वो तो that we will see what happens. But the modest man that you are. आप कामाख्या मंदिर में तो आशीर्वाद लेंगे लेकिन मातोश्री का आशीर्वाद कब लेंगे? देखिए हम लोग कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेंगे और आसाम की जो जनता आज फ्लड सिचुएशन को फेस कर रही है उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे. चीफ मिनिस्टर फंड को हमारे शिंदे साहब ने 51 लाख का डोनेशन दिया है ताकि कुछ रिलीफ, छोटा सा रिलीफ हमारी तरफ से भी उन लोगों को मिल सके जो इस फ्लड में फंसे हुए हैं. और जो दुर्घटना महाराष्ट्र में हुई है उनमें जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनको उन्होंने 5-5 लाख रुपया और जो जख्मी हो चुके हैं उनको भी 1-1 लाख रुपया देने का अनाउंसमेंट किया है और जल्दी ये मदद भी उनके पास पहुंच जाएगी. केसरकर सर ये भी खबर आ रही है अभी अब मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं संजय राउत एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये जो डिसीजन ऑफ द गवर्नर टू कॉल अ फ्लोर टेस्ट इज अनलॉफुल, इलीगल कह रहे हैं वो इसको. तो वो अप्रोच करे ना सुप्रीम कोर्ट, हमने कहाँ रोका है उनको, वो कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया भी है सर, वो भी खबर है हमारे पास. द उद्धव कैंप हैज मूव्ड कोर्ट में जब वो गए थे तो उनको पूछा गया था कि आपने इतने ही लोगों को डिस्क्वालीफाई क्यों किया, सबको क्यों नहीं किया. ये तो एक चीज है. दूसरे उन्होंने फ्लोर टेस्ट के बारे में भी उस वक्त जिक्र किया था तो उसके लिए भी कोर्ट ने मना नहीं किया. फिर भी वो अगर जाना चाहते तो वो जा सकते हैं.
केसरकर सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप बॉम्बे पहुंचेंगे तो जो कुछ आपके लोग हैं, जैसे आदित्य ठाकरे ने कहा कि 14-15 जो लोग हैं जो अभी शिंदे कैंप में हैं, वो हमारे पक्ष में वोट करेंगे, क्या वो डर है आपको? देखिए, ये तो इनका सपना है, ये कभी पूरा नहीं होगा। मैंने पहले भी उनसे अपील की थी, आपके जो 14-15 लोग हैं या एक है या दो भी है, तो उनको बोलिए कि मुझसे संपर्क करें, हम लोग उनको सेफली पहुंचा देंगे मुंबई में। और केसरकर सर, अब जब कल फ्लोर टेस्ट हो जाएगा और आप कह रहे हैं कि हम है रियल शिव सैनिक, वो हैशटैग भी यूज किया था शिंदे साहब ने, तो पार्टी सिंबल का क्या होगा? देखिए, ये तो पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्टी सिंबल के बारे में इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। तो आज तो हम असेंबली में शिवसेना पार्टी पहले भी थे, आज भी है, और इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो क्लेम है वो भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, और जो गलत निर्णय दिया था डिप्टी स्पीकर ने, वो भी खारिज किया जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन केसरकर सर ये है आपसे कि क्या आप फ्लोर टेस्ट के बाद इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे ऑफिशियली पार्टी क्लेम करने के लिए कि शिवसेना हमारी है, सिंबल भी हमारा है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अभी शिवसेना को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया, एंड एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल। तो ये बहुत देर तक एनसीपी के साथ जो उनका गठबंधन है, और हम लोग तो शिवसैनिक है, फिर हमसे ज्यादा अगर वो पवार साहब से ज्यादा ये करते हैं, लगाव है उनको, तो उनके साथ जाए, हम लोग उसको उनको कैसे मना कर सकते? लेकिन टिल यस्टरडे वी वेटेड फॉर आवर ऑनरेबल लीडर, he didn't took any decision of going away from NCP and Congress. So he continues with decision. That is his decision. Let him go ahead with it. तो सर, बीजेपी के साथ क्या बातचीत हो रही है, क्या आप हमें थोड़ा डिटेल बता सकते हैं सर? क्योंकि फडणवीस जी पहले दिल्ली पहुंचते हैं, आप बताया जा रहा है वापस मुंबई आ रहे हैं एमएलए के साथ। ये तो बातचीत करने के पूरे अधिकार शिंदे साहब को है, और शिंदे साहब जो भी डिसाइड करेंगे हम लोग उनके साथ है। जी, तो आपको उद्धव ठाकरे के लिए क्या कहना है सर? क्योंकि वो इमोशनल अपील करे जा रहे हैं, वो इमोशनल अपील करे जा रहे हैं कि आप तो परिवार है, वापस आइए, बातचीत करिए और सारा मसला हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। परिवार को कोई मुर्दा बोलता है क्या? परिवार की पोस्टमार्टम करने की कोई बात करते हैं क्या? परिवार को कोई सुअर बोलता है क्या? कितने गंदे गंदे शब्द जो हम उच्चार भी नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों से हमें ये क्या एक्यूज किया गया, फिर हम क्यों जाए वहां पे? वो जब तक राउत जी है, हमारा जाने का कोई सवाल ही नहीं है। मिस्टर राउत, जब तक राउत जी हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डू यू आई थिंक ही इज स्टिल स्पीकिंग राइट नाउ। केसरकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।